बस पता नहीं सर, डर लगता है। मैं बस उसी फियर को दूर करने के लिए मैं ज़बरदस्ती आ गया लिखने। 9-10 पेज पे ही अटक जाता हूँ, उससे आगे जा ही नहीं पा रहा। Sir, we are in doubt regarding whether we can put our examples from our day-to-day life, or we have to put notable examples like of the great persons like we have seen in the model answers. These are the things we are facing now. Yeah, most of the time in philosophical essays. I can see some people are writing. You can understand and imagine the surprised feeling that the students who were writing this year's mains, आपने तो पेपर ये देखा होगा पहले ही, that is for sure, but उन्होंने तो पहली बार देखा ना एग्जाम हॉल में, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आइडियल सिचुएशन। ये सिचुएशन वहाँ नहीं होगी, ठीक है। आपने ये टॉपिक्स पहले से ही देखे हुए थे समवेयर। Yes, you can see the trend, right? Somehow the GS type of topics are coming in essay. Last year also they have introduced 1 or 2 topics. Now more topics are introduced, and philosophical topics are reduced comparatively. In 2020, 21, 22, more philosophical topics were there, right? We expect that in next year when you will write mains, this trend continues. But philosophical topics will be there, that is for sure. This has been always, we can say, the forte of UPSC, to check the philosophical depth of this. Basically helps them to understand your personality. Essay is not to check your knowledge, that is for sure. And the importance of essay, जनरली स्टूडेंट्स बाईपास द प्रिपरेशन ऑफ एसे। देखा जाएगा प्रीलिम्स के बाद में 4-5 एसे लिख देंगे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देंगे, राइट, एंड देन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। मेनी टाइम्स द टॉपर्स ऑल्सो गाइड लाइक कि आप जीएस के 4 पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप एसे अच्छे से लिख लेंगे, वही एग्जाम्पल लिखने हैं, वही चीज़ें लिखने हैं उधर। बट दैट इज वी कैन से नॉट कम्प्लीटली ट्रू। रादर वी कैन से दैट yes, examples you can use them, case studies you can use them, but essay it has its own language, it has its own language, ठीक है। अगर ऐसा होता तो बाकी आप देखिए, आप अगर जीएस टाइप का अगर essay लिखते हैं वो लैंग्वेज, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग, और I have seen even less than 70 also I have seen marks in essay. You can see the difference. Can you see such kind of difference in GS 1, 2, 3? I wouldn't say 4. GS 1, 2, 3 में इतना difference दिखता है क्या? No, right? But still they are very bulky. GS 5 में, GS 3 में 5 पेपर है, GS 1 में 3-4 पेपर है अलग से, ठीक है। तो you can understand, if you put in a little bit of extra efforts in this paper, it is going to fetch you lot of more marks or lot of, we can say, benefits. तो आप ये ध्यान रखिए। सेम इज विथ योर एथिक्स पेपर, राइट। आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फियर ऑफ राइटिंग एसे। मुझे बताइए कि इसको ऐसे लगता है। यस, वो माइक देना कहाँ पे? क्यों आपको डर लगता है एसे लिखने में? शेयर सम इनसाइट्स, अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो गेट इट। बस पता नहीं सर, डर लगता है। मैं बस उसी फियर को दूर करने के लिए मैं ज़बरदस्ती आ गया लिखने को। Is it like we have already written essay in 10th and 12th standard, है ना? Yes, At least 200 words, 300 words we have written. Is it about 1000 words or 1200 words? No, sir. Then ऐसा ही डर लगता है। बस 10-12 पन्ने लिखने हैं, पता नहीं क्या लिखूंगा। Yes, यही सर, there is a pressure. प्रेशर। यस सर। So it's about let's say how the examiner is going to perceive us, our personality, judge us, and that is the pressure that we are. Yeah, most of the time in philosophical essays. Philosophical essays. हाँ. Okay. Yes, what about you? 9-10 पेज पे ही अटक जाता हूँ, उससे आगे जा ही नहीं पा रहा। Are you able to choose the right topic? Yes sir, I am able to choose the right topics. Okay, okay. The word limit is main challenge. Yes sir.
और सर एग्जांपल्स क्या कोट करें, वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। Examples. Okay. Other students, yes, what challenge you are facing? Sir, we are in doubt regarding whether we can put our examples from a day-to-day life, or we have to put notable examples like of the great persons like we have seen in the model answers. These are the things we are facing now. Right. Also, sir, do you have to give justification to the given statement in the whole essay, like the given quotes or Whether we the have to completely accept it as a true, or whether we have to also give counter view. yeah, or we have to show the both the sides, so whether we accept it or we are declining it. Right. Yes. Anyone else? आपको सारे लोगों को आपको लग रहा होगा कि यही एक मेजर चैलेंजेस है राइटिंग ऐसे. All right. Let's first talk about choosing the topics. This is very important task actually, and that we have to do in very less amount of time. But choosing the right topic is the most important choice or decision that you are going to make. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, या जब हम मेंस लिखते थे तो कई सारे स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने आधे घंटे के बाद बीच में ही टॉपिक चेंज किया है रफ वर्क करने के बाद. उनको लगता है कि उनके पास 100 वर्ड्स बनेंगे ही नहीं, 1000 वर्ड्स बनेंगे ही नहीं सडनली, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज्ड, ऑलवेज कन्फ्यूज्ड अबाउट 2 टॉपिक्स. आउट ऑफ 4 यू विल एलिमिनेट 2, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, बट 2 में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है. जैसे आपको प्रीलिम्स में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, the same way you may get confused in 2 topics. But again, I am telling you, choose that topic which is your strength. If you are talking about GS type of topics, GS topics में आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा. जैसे आप सेक्शन 1 में देख रहे हैं फॉरेस्ट, so some students are having some strength in geography, environment. इसमें अगर आप strong है तो most of the students will choose that topic. ठीक है. अगर सेक्शन 2 में आप देखते हैं तो अगर आपको सोसाइटी से रिलेटेड ज़्यादा, या फिर आप ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा करता है सोशल इश्यूज़ का डे टू डे लाइफ में, आप करंट डेवलपमेंट्स, करंट अफेयर्स में काफ़ी स्ट्रांग है, अबाउट द सोशल मीडिया, राइट. सो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द इश्यूज दैट वी एज अ सोसाइटी आर फेसिंग. ठीक है, एंड स्पेशली यंगर जनरेशंस, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, तो ये आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, तो यस श्योरली यू विल चूज दैट. नाउ देयर आर अदर पीपल हु आर कंफर्टेबल इन सम फिलोसॉफिकल टॉपिक्स. दे मे बी हैविंग फिलोसॉफी एज ऑप्शनल, दे मे बी गुड इन एथिक्स पेपर, एंड दे आर चूजिंग द फिलोसॉफिकल टॉपिक्स. समहाउ दोज विथ टेक्निकल ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजीनियर हो गए, उनको ऐसे लिखना ही चैलेंज लगता है, क्योंकि उनका कभी भी इंजीनियरिंग में भी आंसर 2 पेज के ऊपर हुआ नहीं, और उनको कैलकुलेटर के बिना कोई भी आंसर लिखने नहीं आता. कैलकुलेटर आंसर हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को ना ज़्यादातर, राइट. मुझे भी ये चैलेंज था स्टार्टिंग में, हाउ टू राइट 1000 वर्ड्स. और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तो बाद में हुआ. मैंने 2012 में मेंस लिखा हुआ है, जब एक ही ऐसे टॉपिक था. ठीक है, और उस टाइम पे आपको 2000 वर्ड्स लिखने थे एक टॉपिक पे. सोचिए, ये तो बाद में हुआ है. ये यू आर लकी, ठीक है, कि आपको 2 टॉपिक के ऊपर लिखने को मिल रहा है. 2000 वर्ड कैसे लिखते हैं हम? जैसे ही ऑप्शनल 2012 में था तो 60 मार्कर्स आते थे. ठीक है, 60 मार्क का क्वेश्चन था. जो आपका 20 मार्कर अभी होता है वो 60 मार्कर रहता था. ठीक है, 5-6 पेज लिखने पड़ते थे. So I'm telling you that writing 1000 word is attainable. It is possible. How? Choosing the right topic and then brainstorming on it. इसलिए मैं अभी बाहर जो आए थे स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं टॉपिक देख रहा था और पीछे लास्ट पेज ओपन कर रहा था. क्यों? मैं देख रहा था कि ये रफ वर्क क्या कर रहा है. आपको पेज दिया जाता है ना एंड में रफ वर्क के लिए,
बेसिकली वो रफ वर्क कितना ऑर्गेनाइज्ड है, किस वे में आपने किया हुआ है ना, दैट ऑल्सो शोज योर पर्सनैलिटी, दैट ऑल्सो शोज योर पर्सनैलिटी। क्योंकि आप वहां पे कीवर्ड्स लिख रहे हैं ना, सारे सारे डायमेंशंस भी मेंशन कर रहे हैं। एंड हमें ये भी बताया गया था कि आप इंट्रोडक्शन एज इट इज रफ वर्क में एक बार लिखिए पूरा 1.5 पेज का, 150 वर्ड्स का, ताकि आप जब इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, राइट, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। गेटिंग दिस? यस, इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपका रफ वर्क जल्दी हो जाता है तो दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड एटलीस्ट फॉर 1 essay। फर्स्ट एको करिए, जो स्टार्ट है ना वो, वहां पे आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे मैं कुछ और लिख पाता, बाद में चल जाता है आगे पीछे, इंट्रोडक्शन में नहीं चलता है। किसमें? हाँ, हाफ एन आवर दीजिए, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज प्लानिंग, राइट, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी आर गोइंग टू राइट, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑल दीज थॉट्स, and how we are going to write in sequential manner all these dimensions, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे के आपको पता है डायमेंशंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन, देन इंटरप्रिटेशन, elaboration, then if there is any counter view then you mention that counter view, way forward conclusion, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपको थेसिस लिखना चाहिए। थेसिस होता है ना, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस एसे, 1-2 पैराग्राफ का आपको थेसिस लिखने आना चाहिए। एंड आर एसे शुड बी इन लाइन विद दैट थेसिस, कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, एंड ब्रिंग बैक दैट थेसिस इन योर कंक्लूजन द वे वी हैव प्रोसीडेड। ओके, दिस मेक्स आर एसे कोहेरेंट। मतलब क्या है, वो बोलते हैं ना कि आप किसी ने आपको पूछा कि ये एड्रेस कहाँ पे, तो आप सही से उसको गाइड कर रहे हो। तो पूरे एसे में भी आप जो एग्जामिनर को आप गाइड कर रहे हो कि कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इफ द एग्जामिनर इज हैविंग अ स्माइल ऑन हिज और हर फेस आफ्टर रीडिंग योर एसे, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। और बहुत मुश्किल होता है 50-60 ईयर्स के जो पर्सन होता है उसको मतलब खुश करना। Why I am saying this? Because he is already experienced. He knows most of the things. तो आप ऐसा क्या यूनिक लिख रहे हैं ऐसे में जो उसको नया लग रहा है, इंट्रूगिंग जिसको बोलते हैं, कि वो उसको क्यूरियस कर रहा है यार ये क्या लिखने वाला है आगे, ठीक है। तो ये 150 प्लस वाले जो होते हैं ना, आप उनके ऐसे पढ़िए, आप खुद ही मजा आ गया यार ऐसे बोल देंगे ऐसे पढ़ के। दिस इज व्हाट एसे इज। वो 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के जीएस में नहीं दिखाई देता है, वहाँ सिर्फ नॉलेज दिखाई देता है आपका। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स वाई दे वांट टू मेक यू IAS ऑफिसर। ये जो है ये क्यों दे रहे हैं इतने मार्क्स इनको? गेटिंग दिस? तो इसके ऊपर वर्क करना है हमें, राइट। सो इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस चैलेंज ऑफ राइटिंग एसे, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। आप मतलब बहुत बार मैंने देखा है टॉपर्स बोलते हैं हर संडे को एक एसे लिखो। क्या आप लिखते हैं? अगर लिखते भी है तो इसका सही तरीके से इवैल्यूएशन आपको मिलता है, फीडबैक, दैट इज ऑल्सो मेजर चैलेंज, राइट। एंड दैट्स वाई यू शुड हैव राइट काइंड ऑफ लेट्स से गाइडेंस, एंड फॉर दैट वी आर हैविंग एसे ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। अब ये एक यूनिक है, मैंने बताया प्रीलिम्स के बाद में आप 7-8 ऐसे लिख के नहीं होने वाला है। इट शुड बी द प्रैक्टिस थ्रू आउट ईयर नाउअडेज, अगर आपको ये टच करना है तो, ठीक है। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये पैटर्न मैंने बताया कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी कंटिन्यूड। व्हाट अबाउट इफ यूपीएससी गोज बैक टू 2020 एंड 21 की चारों के चारों टॉपिक्स जो है फिलोसॉफिकल है, then what we will do? And you know that जिंदगी में हमने एक चीज सीखी है कि यूपीएससी के जैसा अनप्रेडिक्टेबल हमने कोई पर्सन भी नहीं देखा है, ठीक है। हम पर्सन का बिहेवियर भी प्रेडिक्ट करना जान लेते हैं, ठीक है, कौन कैसे बिहेव करता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स दे ही रहे, आप समझ रहा होगा आपको, ठीक है।
तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू बी रेडी विथ एवरीथिंग, राइट. एंड यस, वो टेस्ट सीरीज में आपको सारे टाइप के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, मेंटरिंग मिलेगा और इवैल्यूएशन भी रहेगा. तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. Second thing that I wanted to share with you is about MIGP program. Have you heard about it? Mains Intensive Guidance Program. 14th of October से शुरू होने वाला है. This week on Friday we are having open session by Ansari sir, जहाँ पर अंसारी सर आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है आपके लिए. आपको पता है प्रीलिम्स 2025 के बाद वी आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. इस बार मेंस अगस्त में ही होने वाला है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन नॉट ज्वाइन एनी एनरिचमेंट कोर्स आफ्टर प्रीलिम्स. आप सिर्फ आंसर राइटिंग करोगे. अगर एनरिचमेंट कोर्स करोगे तब तो आंसर राइटिंग कब करोगे फिर, right? And that's why I'm telling consistently that by the end of this December you should be ready with 80% of your GS and essay preparation. When I say 80%, that means 20% जो अगले 6-7 महीने में करंट डेवलपमेंट्स होंगे उतना ही बचना चाहिए. वो तो आप बाद में करोगे ना करंट अफेयर्स का. So you be ready with your 80% of preparation for your GS and essay, and that we are going to provide. Second important quality of this program is this is going to be completely offline program. Only classroom program, no online. अब आप बोल रहे होगे ये तो हमारे लिए इनकन्वीनियंस है. नो, आप यहीं पे है, आप क्लासरूम में आइए. क्यों? कोविड से पहले भी तो आप क्लासरूम से पहले मतलब स्टूडेंट्स तो क्लासरूम में आते थे ना. नाउ व्हाई वी आर कीपिंग दिस इन दैट मैनर is we want to provide exclusive study material and guidance in the classroom. ठीक है. अब ये एक्सक्लूसिवनेस इसलिए है क्योंकि आप जब 2025 का आंसर लिखोगे, when you will write mains examination, it should reflect in those answers and it should fetch extra marks as compared to your competitors. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो आपके साइड में बैठे हुए स्टूडेंट्स का और आपका एग्जाम्पल जो है उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए. आपके पॉइंट्स और उनके पॉइंट्स में डिफरेंस दिखना चाहिए हमें. गेटिंग दिस? एंड दैट 1 mark in every answer, extra mark in every answer that you will get, that is going to make you IAS. ठीक है. 900 रैंक लाना is not, for me it is not achievement. You are going to give you improvement attempt for sure. ठीक है. तो उसके लिए आप फिर से 1 साल क्यों डालोगे? ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता है. ठीक है. और जैसे मैंने बोला अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अगले साल पता चला प्रीलिम्स ही नहीं होगा. ठीक है. बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट, एंड फॉर दैट आई एम टेलिंग यू 80% जो मैंने बताया है, एंड द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू. अब इसमें आपको बताता हूं मैं, आपको डिटेल्ड शेड्यूल मिलेगा, डिटेल्ड टॉपिक लिस्ट हमने बताई है. गो थ्रू दैट टॉपिक लिस्ट एंड यू कैन सी उसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है. बहुत ही यूनिक टाइप के टॉपिक्स हमने उसमें चूज किए हैं. जैसे आपको लग रहा होगा क्लासरूम में क्या पढ़ाएंगे, हम तो 2-3 साल से पढ़ ही रहे हैं, फाउंडेशन हो चुका है, एनरिचमेंट भी एक बार कर चुका है. नो, we are not going to teach you the let's say basic NCERTs material or basic reference books material. We are going to teach you the current affairs and static part in an integrated manner. ठीक है. इंटीग्रेटेड मैनर मतलब क्या है? समझो कोई एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक पार्ट से आता है, तो उसमें आप करंट के कौन से डेवलपमेंट्स को लिंक कर सकते हैं. इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट डेवलपमेंट्स, हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट द स्टैटिक पार्ट इन दैट आंसर. और इसके लिए आपको क्लास में ही हर टॉपिक का 1 पेज नोट मिलेगा. ठीक है. 1 पेज नोट समझते हो? दैट इज द अल्टीमेट रिविजन मटेरियल व्हेन यू विल रिवाइज दैट. वो जो GS 1 और 2 के बीच में 2 घंटा का टाइम दे रहे हैं ना, इस बार 3 घंटे दे दिया यूपीएससी ने. पता नहीं, टाइम देखा होगा आपने ना, चेंज किया है उन्होंने. बट उसमें क्या लिखा है कि आधा घंटा पहले आना चाहिए क्लास में. तो इसेंशियली वो 2 घंटा ही हुआ. ठीक है. तो वो 2 घंटे में आपका स्टडी मटेरियल GS 2 और 4 का रिवाइज हो जाना चाहिए. ऐसा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए.
and that study material will help you to fetch more marks. है ना? आपका स्टडी मटेरियल, मैं हमेशा स्टोरी मैंने 4 मेंस लिखी हुई है लगातार, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं स्टोरी बताता हूँ स्टूडेंट्स को ये, ठीक है। मैं पुणे से हूँ बेसिकली, और हमें मेंस का सेंटर एक ही था, मुंबई। तो पहली बार मैंने मेंस लिखना के लिए गया तो हमें पता नहीं था शॉर्ट नोट्स वगैरह होता है। तो पहली बार मेंस लिखने गया तो मैं 2 ट्रॉली भर के लेके गया सेंटर पे, ठीक है, जहाँ हम रहने वाले थे हॉस्टल पे। 2 ट्रॉली बुक्स, पूरे बुक्स, एम लक्ष्मीकांत इतना हाईलाइट किया हुआ, सारे बुक्स ऐसे लेके गए वहाँ पे। और उस दिन गया तो कुछ रिवीजन ही नहीं हो रहा है कि पहला पेपर लिखने के बाद GS 1 और 2 के बाद तो नींद आ जाए, वही बड़ी बात हो जाती है। तो क्या इतने बुक्स लेके जाने का फायदा? कुछ नहीं। तो नेक्स्ट टाइम किसी ने बोला, सीनियर ने, कि नहीं, इसका आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो नेक्स्ट ईयर हम गए तो वो 1 ट्रॉली थी, क्योंकि 1 साल में इतना हो भी नहीं पाया ना शॉर्टन, ठीक है। तो 1 ट्रॉली लेके गए हम, फिर वो भी इतना यूजफुल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उसका मेंस का ऑप्शनल का ही मटेरियल होता है बहुत सारा, ठीक है। तो ऑप्शनल का इतना बना नहीं था नोट्स, तो ऑप्शनल का सारा बुक्स लेके गए इतने सारे। नेक्स्ट टाइम हमें पता चला कि उसके ऑप्शनल के भी नोट्स बनाने हैं, तो 1 साल वो ऑप्शनल के नोट्स बनाने में चले गए। टेलिंग यू, महाराष्ट्र में इतना मेंस का गाइडेंस नहीं था, तो उस टाइम की बात है। तो दिस इज हाउ वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। तो लास्ट ईयर जब मेंस लिखा मैंने 2015 का, तो मैं इसमें सिर्फ कपड़े थे और सिर्फ क्या था, इतना नोट्स था, 4 पेपर का और ज्योग्राफी का, इतना ही नोट्स था। तो मुझे पता था कि मैं यही रिवाइज कर पाऊंगा वहां पर, और इसी को बार बार रिवाइज करके ही अच्छे से लिखना है। तो ये आप समझिए मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, आपने भी इतना ही स्टडी मटेरियल लेके जाना है, ठीक है। इसमें सिर्फ की फैक्ट्स, कीवर्ड्स, डेटा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, केस स्टडीज, यही चीज लिखना है, राइट। इलैबोरेट तो आप लोग करने आएगा एग्जाम में, यू विल बी एबल टू इलैबोरेट, राइट। आपको एक कीवर्ड दे दिया तो आप पूरा 1 पेज तो लिख ही दोगे उस पे। So these 1-page notes will provide you on all these topics. Okay, so do attend the Friday's session. We will provide you the timing and venue of that particular Opus session. ठीक है, आप वो attend करिए. Ansari sir will guide you, and GS 2 and 4 will be taken by Ansari sir completely and other papers by expert faculties. ठीक है, डेली 2 सेशन होंगे 3-3 घंटे के क्लासरूम। उसके साथ में ही डेली असाइनमेंट्स होगी आंसर राइटिंग की। उसके बाद आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड मॉक टेस्ट भी होंगे एंड में। दैट मीन्स आंसर राइटिंग इज ऑल्सो डन अलॉन्ग विथ योर PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आंसर राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो इतना कॉम्प्रहेंसिव नहीं है बाहर, मुझे पता है। सेकंड थिंग, इफ यू हैव गिवन मेंस, अगर पहले कभी मेंस लिखा हुआ है तो एडमिट कार्ड वो लेके आइए, 70% आपको उस पर वेवर मिलेगा फीस में। अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है या पहले भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया है, या आप लुकमान IAS के स्टूडेंट्स हो पहले, तो आपको 50% फी वेवर मिलेगा उसमें, ठीक है। तो वी आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस प्रोग्राम कि ये ऑफलाइन ही होना चाहिए। आप उसमें डाउट मत रखिए माइंड में कि ये सर हम ऑनलाइन चाहिए या ये वाला चीज़, ठीक है। हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल देना है, एक्सक्लूसिव गाइडेंस देना है। ओके, आपकी तरफ से आप कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे। हाँ, फाइन। See, are you going to attempt 25? Okay, fine. Fine. So, see, optional you are doing, that is fine. But I am telling you, अगर आप ये क्लासरूम कोर्स करते हैं GS का, MIGP का, and you are going to receive the 1-page notes also. After prelims, what you are going to do, you are going to revise this and only do the answer writing. ठीक है,
अगर ऑप्शनल की अगर बात करते हैं तो आफ्टर प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू डू इंटेंसिव आंसर राइटिंग फॉर योर ऑप्शनल ऑल्सो, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई वुडंट वरी अबाउट योर ऑप्शनल, ठीक है. क्योंकि अगर बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका ऑप्शनल खत्म हो जाता है तो आप अगले साल जो है प्रीलिम्स के बाद उसका रिवीजन करके, ठीक है. बट ट्राई टू फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग योर ऑप्शनल, क्योंकि मुझे पता है अंसारी सर जो है एलाबरेटेड डिक्टेशन देते हैं क्लास में, तो बैठ के स्टूडेंट्स है ना, इतने बनाए क्या, कितना बनाए इस बार ठीक है. सो ट्राई टू शॉर्टन इट बाय योरसेल्फ. अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने तो उसको हाईलाइट करिए ना इंपॉर्टेंट पॉइंट से, हाँ तो वो करिए बिल्कुल, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट द रिवीजन तो करना ही है प्रीलिम्स के बाद भी. यस, एनीवन एल्स? इन जनरल डाउट है आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड तो भी? यस, फाइन, ओके, ठीक है, ओके फाइन.